Hello, hi, good morning, everyone. Welcome to the Hindu news analysis of Prep IAS. Today, we are going to discuss important current affairs, and as you can see, there are six major current affairs from UPSC point of view. Jagdeep Dhankar is the new vice president, so election of vice president is an important thing. India has reopened its embassy in Afghanistan, so we need to understand what is the diplomatic mission, what is the purpose of diplomatic missions in Afghanistan. Movement of Yuan Wang 5 ship and India's concern. So there is a security crisis that is happening in the Indian Ocean. Capturing tigers in the wild, there is a small excerpt mentioned in the newspaper. So we need to understand what are the tiger conservation measures. Defense policy of procurement 2005, and that is the from GS2 point of view, this policy of procurement where DRDO as well as Ministry of Defense engages with another country to buy some technology for defense purposes. We need to understand the policy. And at last, as you can see, Rajasthan Nadis. So it's a local water conservation efforts that we have to discuss. So very small, like there is a very small amount of content that I have provided to you in this particular uh, uh, analysis, and this analysis might get delayed a bit. So I am really sorry for the inconvenience, but Prep IS makes sure that your preparation is not hampered. So definitely we are going to present the analysis. But before we dive too much into the content, let's just take a quick glance of how the newspaper looks like today, right? So this is the Delhi edition of the newspaper, and in this particularly, what you have to see is this. So Alva condemns opposition leaders who backed him. Now, in this, what has happened? National Democratic Alliance ke candidate, and he was a former West Bengal governor, Jagdeep Dhankar. He is the 14th vice president of the country. This is what we have to remember. He is the 14th vice president, right? And the returning officer responsible for the election of the vice president was Utpal Kumar Singh. Utpal Kumar Singh. This is what is mentioned over here. He's the 16th Vice President of India. And how much votes he have received, that all we don't have to discuss. So we'll outgoing Vice President is Venkaya Naidu, and Vice President is not just the Vice President. I mean, it's not just a constitutional post. This person is also responsible for the conduct of the Rajya Sabha. We all know that Rajya Sabha is a permanent house. The second important current affairs you see is embassy intact, India ups Kabul work, which means the visa facilitation services are yet to begin. But however, our officials are already inside Afghanistan, right? And they are focusing on business and trade opportunities and distribution of food and medical aid. This particular discussion is going on with Taliban since June. We have a lot of diplomatic officials, diplomats in Afghanistan right now. And then there is like opening of international airspace. So you need to understand what is the purpose of embassy and how is it different from high commissions, right? Like center sounds caution over steady rise in COVID-19 cases. In this, you will find that Health Ministry has written to six states and in Delhi, and there are certain changes in the virus that have been reported. There is also an increase in the uh, uh, number of cases uh, which are related to influenza like illness, or you can say that ये वायरल का समय हो रहा है, तो क्या होता है ना, मंत्रालय थोड़ा सतर्क हो गया है इस समय. इसीलिए मंत्रालय ने 6 राज्यों को लिखा है कि भाई देखिए, आप कोविड के बढ़ते हुए केसेस पर जरा नजर रखिएगा. ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है. चाइना का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक तरह से सिमुलेटिंग अटैक है, ऐसा ताइवान ने कहा है. अब जो नैन्सी पेलोसी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कांग्रेस की जो टॉप नॉच ऑफिशियल हैं, जब वो ताइवान गई थी, तो उस समय बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये यूएसए अचानक से ताइवान और जापान की विजिट क्यों कर रहा है. ऐसे में चाइना ने क्या किया था, ताइवान स्टेट, इट्स अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर सेपरेटिंग चाइना एंड ताइवान, वहां पे चाइना ने मिलिट्री और नेवल ड्रिल्स करना स्टार्ट कर दिए थे, और उसमें जो भी वो बैलिस्टिक वेपन्स यूज कर रहे थे, वो ताइवान के 10 नॉटिकल माइल के बॉर्डर के विद इन थे. अगर आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी पढ़ा है, यूएन क्लोज, तो आप ये जानते रहेंगे यूएन क्लोज 1982 के हिसाब से जो पानी का आपका टेरिटोरियल वाटर्स होता है, वो 12 नॉटिकल माइल तक का होता है, 12 नॉटिकल माइल तक का होता है. यानी कि अगर हम इंडिया को कंसीडर करें, तो ये जो हिस्सा है 12 नॉटिकल माइल तक का, ये आ जाएगा बेसिकली इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में, राइट.
तो ये वाले हिस्से पे अगर कोई भी शिप आता है तो इसका मतलब वो आपकी टेरिटरी पे है। और जहाँ पे ताइवान की बात करें तो वो तो 10 नॉटिकल माइल तक के एंटर कर गया था उसकी मिसाइल से, मतलब कि इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी। सो इसमें इंडिया का एक जो शिप का मूवमेंट है वो इंडिया के लिए कैसे सिक्योरिटी कंसर्न रेज कर रहा है वो देखने वाली बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 11 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इट्स लाइक अ पॉलिटिकल न्यूज़। देन दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकल न्यूज़। आगे बढ़ते हैं अगर हम इसको और डिस्कस करें इस पेपर को आज, तो इसमें श्रीलंका ने अफसोस जताया है, चाइना के शिप को वापस जाने के लिए कहा है। वो अगेन ऊपर वाली और नीचे वाली करंट अफेयर्स आपस में इंटर रिलेटेड है। बाकी आपको पता है कि हम सिटी के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं। अगर हमें द हिंदू डेली पढ़ना है तो हमारे लिए ये स्टेट स्पेसिफिक और सिटी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हालांकि मैं स्टेट स्पेसिफिक में आपको वो चीज़ें बता दूंगा जो चीज़ ज़रूरी है, पर आज के पेपर में ऐसा कुछ बहुत मेजर अपने को देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। तो इसमें हम सीधे आ जाते हैं हमारे नेशनल न्यूज़ की तरफ। अ, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पेज नंबर 6 पे ये जो इदुक्की रिजर्वॉयर है ये रेड अलर्ट पे चला गया है, क्योंकि पानी का जो इनफ्लो है वो बढ़ चुका है यहाँ पे। और ये इदुक्की रिजर्वॉयर है कहाँ पे? केरला में। और किस लिए यूज़ किया जाता है? इदुक्की रिजर्वॉयर ऑब्वियसली एक डैम है और उसका जो कैचमेंट एरिया है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये देखिए, द लेवल हैज़ बीन राइजिंग ड्यू टू रेनफॉल इन द कैचमेंट एरिया एंड द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द मुल्ला पेरियार डैम। Now, Mulla Periyar Dam is a contested issue between Tamil Nadu and Kerala. So this is what you need to remember. The location of important dams in India becomes important, right? So this is where you can do an extra kind of preparation. This is an important cover. Tigers in the wild captured by camera traps. Now, in this, you know that there is a tagging method called as geo tagging, where we were tagging tigers and trying to keep a an idea about the movement of the tigers, and it's because we needed to calculate them, the number of tigers India has in as per Project Tiger. In this you will find there is a Nagarjun Sagar Sirisailem Tiger Reserve, Nagarjun Sagar Sirisailem Tiger Reserve, and International Tiger Day. These all facts are directly not asked in civil services examination, but then they can ask you where is this particular tiger reserve located. So this information we are going to cover, right? So in this you will find that 2500 square kilometers area has been covered, and basically camera photographs ले लेके ये क्या कर रहे थे, पेंच, बांडवगढ़, तादोबा, इन सब जगह पे टाइगर्स के एनालिसिस कर रहे थे। और इन्होंने 80 टाइगर पाए हैं टाइगर रिजर्व्स में। अब टाइगर कंजर्वेशन हमारे लिए 1973 से इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा फैक्ट्स डिस्कस कर लेंगे। फॉरेन फर्म्स अचीव ओनली 82% टारगेट इन डिफेंस डील ऑफसेट्स, व्हिच मींस we need to understand what is the defense procurement policy of 2005 as well as what is the meaning of this offset term, ये हमें समझना है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, फॉरेन फर्म्स जो है, इंडिया हैवीली क्या करता है, अपना जो डिफेंस सर्विसेज है उसको खरीदता है। डिफेंस सर्विसेज अपने मतलब अपने डिफेंस सिस्टम्स को वो इंडिजिनसली नहीं बनाता है, सारे के सारे उसके बाहर से आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 साल में 6.83 बिलियन का जो डील है, और उस उतना इंडिया ने अगस्त 1 तक किया है। और उसके बाद उसमें अराउंड 82.13% यानी 5.61% बिलियन का ऑफसेट हुआ है। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? ऐसा समझिए कि अगर आप किसी से कोई प्रोडक्ट, इफ यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम समवेयर समथिंग, अगर आप किसी से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और वो आपकी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इफ दैट प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सिक्योरिटी, राइट, और आपने हैवी कॉस्ट दे रखी है दूसरी कंट्री को, तो आप कोशिश करोगे कि वो जो मनी है, वो जो पैसा है, उसका यूटिलाइजेशन आपके कंट्री में हो, यानी कि वो पैसा आप तक वापस आए, क्योंकि वो आपके देशवासियों का पैसा है। इसीलिए आप कोशिश करोगे कि वो पैसा आप तक वापस आए। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जो पूरी पॉलिसी बनाती है, इसी पॉलिसी को हम कहते हैं ऑफ सेटिंग करना। ऑफ सेटिंग करना, ऑफ सेटिंग मतलब कोई भी चीज़ अगर हमने किसी सामने वाले से खरीदी है तो हम उसको किस में लेके आए, अपने यूज़ में वापस लेके आए। तो ये चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला कि यार देखो, ऑफसेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया इंडिया का। तो 15 कंपनीज हैं जिन्होंने मिस कर दिए हैं अपने डेडलाइन टारगेट्स, जिसमें डिफेंस ऑफसेट कमिटमेंट उनको बोले गए थे। सारा का सारा जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता है वो लार्जली हमारा रशिया से होता है। तो डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी जो है वो अंडर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ऑफ 2005 अनाउंस की गई थी, जिसमें हाई एंड टेक्नोलॉजी कंट्री में लेके आनी थी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बचाना था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ऑफ 2005, what is the objective, or what does the government do, yeah, what is the meaning of defense offsetting?
So you need to understand what does the country do. Country gives money to some other country for buying defense and weaponry. Now that money the country wants, that we do not want to stay dependent on the other country for a defense and security. So what we'll ask the other country is to train our individuals and to provide that kind of technology so that we can also manufacture. Now the catch is this, that why would another country which is selling you some kind of defense systems would want that you are able to manufacture that thing in your own country? So this is where the diplomatic relations turn into security interest, and therefore you cannot go on and buy defense weapons from every country. So today, if America is offering something, India has to balance, because if America is trying to sell us something, there is an alternative. Availability of Russian products and Russian defense systems. Now, if India is buying from America, so definitely India would be asking America कि आप हम पे क्या करिए, इन्वेस्ट करिए और हमारे को टेक्नोलॉजी दीजिए अपनी। ऐसे में रशिया नाराज हो सकता है। तो इसी जगह पे हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना जो मतभेद है वो जताया है और कहा है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के हिसाब से जो 30% का डिफेंस डील था उसको 2000 करोड़ रिवाइज कर दिया गया था पूरे इंपोर्ट पे। तो आपको कोशिश करना था कि 2000 करोड़ तक का हमारा जो ऑफसेट है वो कंप्लीट हो जाए। इसी के तहत गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में अपडेट किया और ऑफसेट क्लॉज को इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट सच एज रफेल डील से हटाया। ऑफसेट गाइडलाइंस को डीपीपी में रिवाइज किया गया, जिसमें ये कहा गया कि मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्लीट डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है हमें इंडिया में ही करना है। तो ये सारी रिपोर्ट आई है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा ऑडिट में, और इसको पार्लियामेंट में टेबल किया गया है, जिसमें 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि 66,427 करोड़ के किए गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए खबर हो जाती है। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के बारे में हमें यहाँ पे देखना रहेगा। नेवी टू हॉइस्ट फ्लैग ऑन 6 कंट्रीज, 75th ईयर ऑफ फ्रीडम है। तो नेवी क्या है हमारी, आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सतपुरा, आईएनएस तरकश, आईएनएस तरंगिनी और आईएनएस त्रिकंड, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस बेतवा, आईएनएस सरयू। ये जो डिप्लॉयमेंट्स हैं इन शिप्स के, आप इनको देखिएगा, ये सारे फ्राइगेट्स हैं इंडिया के। तो ये अलग अलग देशों में जाके क्या कर रहे हैं, 15 अगस्त को हमारा तिरंगा लहराएंगे। ये इंडियन नेवी का पर्टिकुलर सेलिब्रेशन है। इससे होगा क्या, डेफिनेटली इंडिया का 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो ये जो कंट्री है ये पूरी दुनिया में बताना चाहती है कि इसने क्या क्या किया है ना। इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एआई सोल्यूशन फॉर रियल टाइम इनपुट्स फॉर द आर्मी, इसमें कोलैबोरेशन किया है डीआरडीओ के साथ। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पिछले सालों से कई देखा जा रहा है कि इसका रियल टाइम इनपुट जो है वो जो सेंसर्स देते हैं हमें ऑन फील्ड में बड़ी मदद करता है। करेक्ट। तो आर्मी ने क्या किया है, अलग अलग जगह पे स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम्स लगा दिए हैं नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। इसकी टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम चाइना और पाकिस्तान के साथ एक तरह का ट्रस्ट डेफिसिट महसूस कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने भी तैनाती दिखाई है। इसमें क्या है, हिट्रोजिनस इनपुट्स अलग अलग डिवाइसेस से आ सकते हैं, जैसे कि ये देखिए पैन टिल्ट जूम कैमराज है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी विल नॉट आस्क कि इंडिया क्या करता है एआई सोल्यूशन में। इंडिया आपसे ये पूछेगा कि एआई का डिफेंस में क्या क्या एडवांटेजेस है। तो यहाँ पे जो हमारा डीआरडीओ के साथ मिलकर जो भी चीज़ें हम इनपुट कर रहे हैं, जैसे कि हम सेंसर्स लगा रहे हैं फील्ड में, जैसे कि हम हीट्रोजिनस इनपुट्स लेने के लिए पीटीजी डिवाइसेस या पीटीसी कैमरास लगा रहे हैं जो कि इमेजिंग करता है दिन और रात में। ठीक है। इंटेलिजेंस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में हेल्प करेगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें आपसे ऑप्शंस में पूछी जाएगी कि ये क्या क्या कर सकता है एआई डिफेंस में। तो वो वाले फैक्ट्स आप देख लीजिएगा यहाँ पे। जो बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट एंटर्स इनटू अ पोलराइज्ड हाउस। पोलराइजेशन का मतलब है कि हाउस जो है हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट एंड द राइट। लेफ्ट एंड द राइट तो एक पॉलिटिकल टर्म है। पोलराइजेशन का ये भी मतलब होता है कि एक तरफा मूवमेंट चल रहा है, तो सरकार कुछ कहना चाह रही है, ऑपोजिशन बॉयकॉट कर रहा है। तो ऐसे में अब जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के चेयरमैन होते हुए क्या करेंगे, ये देखने वाली बात हमारे लिए रहेगी। तो इसमें देखिए ये पूरे करंट अफेयर्स में, इस पूरे न्यूज़ पीस में आपको करंट पॉलिटिकल सिचुएशन समझाएगा। और जैसा कि आप सिविल सर्विसेज के पेपर का नेचर जानते हैं, वो करंट सिचुएशन को लेके स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है। तो ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, दोनों ही आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, याद रखिए ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। तो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। हम इसको थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस कर लेंगे अपने पास से। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि
ऑपोजिशन में इनके अगेंस्ट कौन खड़े थे, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन तो आता नहीं है, बट फिर भी आप देख लीजिए, इनको हम क्या कह रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर कह रहे हैं, ठीक है। इसमें ये कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि जगदीप धामपर जी कोशिश करें कि लेजिस्लेटिव अफेयर्स जो राज्यसभा के हैं वो अच्छे से मैनेज हो। अब एक सवाल आता है कि जगदीप धामकर साहब हैं कहाँ के। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं, शी इज फ्रॉम उड़ीसा, राइट, शी इज फ्रॉम उड़ीसा, शी हैज बीन अ गवर्नर ऑफ झारखंड। नाउ इन दिस यू विल फाइंड जगदीप धामकर इज बेसिकली हेलिंग फ्रॉम राजस्थान, ही इज born in 1951 and he was a governor of West Bengal, right? So this is a brief about his little career, but that is not important. So whatever is not important for UPSC, we try to save our time and we try to avoid it, right? We don't try to, you can say, uh, focus too much about it. So इसीलिए हमें बस इतना समझना है कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, ठीक है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ, जब मैं आपसे पीपीटी शेयर करूंगा तो मैं आपको ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बताऊंगा। अब इस तरह की करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है, ये इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम बिगेस्ट डेटाबेस ऑफ कंट्री फ्लोरा इज अबाउट, ये मैंने अक्सर देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा एम्फोसिस कर देते हैं इन सब चीज़ों पे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये देखिए, ये सब नाम वैसे भी आप प्लांट स्पेसिमेंस जो है वो सब आप भूल जाइएगा लास्ट में, आपको याद रहने वाला नहीं है। लेकिन इसमें जैसे बॉटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिया हुआ है, तो उसके बारे में आप पढ़िए। बॉटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है बेसिकली, ये वर्चुअल हर्बेरियम क्या करेगा, प्रिजर्व कर रहा है इंडिया की इंडिजिनस स्पीशीज को, उनके सैंपल्स को, उनके कलेक्शन जहाँ से वो कलेक्ट किए गए उनका डेटा क्या है, और सबको क्या करेगा, एक डिजिटल नंबर देगा। तो डिजिटल हर्बेरियम बेसिकली डेटा स्टेट वाइज लेके कोशिश कर रहा है कि सारे प्लांट्स जो भी पाए जाते हैं इंडिया में, उसका हम एक डेटाबेस बना सकें, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो स्पीशीज का आइडिया है हर्ब्स का, वो बढ़ेगा। तो पोर्टल इंक्लूड्स अबाउट 1 लाख images of herbarium specimens. BSI Director A. Mao said that by 2022 end, the number of digitized species will increase by 2 lakh. So this is what the government is also doing. And again, this might be important for GS2, but however I don't think so that इससे related कुछ भी यूपीएससी में कभी पूछा जाएगा। इतना स्पेसिफिक यूपीएससी नहीं जाता है। यूपीएससी में एक रूल हमेशा याद रखिएगा, यूपीएससी में एक रूल है, यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब ये है, आप किसी भी चीज के एक्सपर्ट नहीं हो, और आपको एक्सपर्ट बनना भी नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन, राइट। अब देखिए, दूसरा जो खबर आपको दिखाई दे रहा है, बीजेपी के लीडर ने 50% कोटा मांगा है पसमंदाज इन वार्सिटीज में। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए, वापस से मैं बोलूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। 53 के सीयूईटी सेंटर्स जो हैं उनको डिलिस्ट कर दिया गया है। ये सीयूईटी का एग्जामिनेशन फिर से पोस्टपोन हुआ है। बड़ा ही इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे ये न्यूज़ चल रहा था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और नेशनल टेक्निकल जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है, कितना रिस्पॉन्सिव मेजर्स है। तो अगेन आपके लिए क्या हो गया इंपॉर्टेंट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीयूईटी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट हो गया। ये फ्रीडम ऑफ फेस्टिवल है, जिसको संस्कार उत्सव के रूप में प्रधानमंत्री साहब ने संबोधित किया है, कहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, इसमें इमोशनल फ्लेवर्स हैं बहुत सारे, और हमारे जो लोकल लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत रिक्वायरमेंट है। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये आपको मदद कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। तो आप क्या करिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालिए, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द यूथ्स एंड ड्राइव देम टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। ये लाइन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो गई कि आप इसको कहीं भी किसी भी गवर्नेंस के क्वेश्चन में चिपका सकते हैं। सेकेंड चीज जो है, लोकल ट्राइबल म्यूजियम्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं लोकल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन, जिसमें अलूरी सीताराम राजू, आपको पता होगा ये नाम बड़ा कॉमन है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है अलूरी सीताराम राजू का। अलूरी सीताराम राजू जो थे, वो आपको पता है कि ये कहाँ से थे, आंध्र प्रदेश से थे, और इन्होंने आर्म्ड इंसर्जेंसी करी थी अंग्रेजों के दौरान, है ना। तो इस तरह के ट्राइबल लीडर्स जो हैं, आप उसको हिस्ट्री से उठा लीजिए और आप उनको कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का एनालिसिस है। तो हमारा न्यूज़पेपर के एनालिसिस में जो मेरा पर्सनल मानना है, जो मैंने खुद भी अपनी तैयारी के दौरान पाया, और जो भी मैंने इतने समय से जब मैं तैयारी करवाता हूँ, तो मुझे जो आइडिया दिखता है कि हमें करंट को स्टैटिक से जोड़ने आना चाहिए।
न्यूज़पेपर का गेम बस इतना ही है। अगर आपने करंट अफेयर्स को स्टैटिक से जोड़ लिया, तो करंट को पढ़ लीजिए और स्टैटिक को जाके कवर कर लीजिए। तो जो भी लोकल ट्राइबल लीडर्स हैं, वो आपका टास्क है आज कि आप उसकी लिस्ट बनाइए, देखिए उन्होंने कौन-कौन से स्टेट से क्या-क्या किया है। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इन्होंने वाटर कंज़र्वेशन और एनवायरनमेंट कंज़र्वेशन के ऊपर भी बात किया है, तो वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव जो है, वो रिलेटेड है। और बाकी इंडिया के पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के बारे में इन्होंने बात किया है और प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर पेट्रियोटिज्म, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की है यहाँ पे। तो हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट है, आप एक चीज़ याद रखिएगा, ब्यूरोक्रेसी का पेपर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी सवाल नहीं पूछेगा। जो करंट गवर्नमेंट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट गवर्नमेंट का जो पोजीशन है, वो हमारे लिए समझना बेहद ज़रूरी होता है। राजस्थान के नादीज जो है, एक इंश्योरेंस है अगेंस्ट ड्राई समर। नाउ इट्स अ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। सो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अगेन जीएस 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, ये हम एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हैं। तो कुछ कहना इसमें बड़ा ही, तो इसमें एक तरह की हार्डलाइन बना पाना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है कि किस क्या चीज़ ज्योग्राफी में पूछेगा, क्या एनवायरनमेंट में पूछेगा। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको नादीज़ या तालाब्स बोला जाता है। ये शैलो डिप्रेशंस हैं, यानी कि छोटे-छोटे गड्ढे हैं, गाँव में, रूरल लैंडस्केप में, जिसको कि बेसिकली पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और लोगों का थर्स्ट, कैटल का पानी यानी, और वाइल्ड एनिमल्स को जो है ड्राई मंथ्स में बड़ी मदद मिलती है। तो रूरल कम्युनिटीज़ इस तरीके से इन स्ट्रक्चर्स में क्या करती है, ट्रेडिशनल नॉलेज लगा के, लोकल अवेलेबल मटेरियल्स को यूज़ करके, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, पैटर्न कोई फिक्स नहीं है, ऐसे में ये जो एरियाज़ हैं, ये मदद करते हैं। तो अब अगेन अगर आपको जीएस 3 के क्वेश्चंस में पूछा जाए कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो डेफिनेटली राजस्थान जो चीज़ें यूज़ कर रहा है, लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, right, conserving the local habitat by participation of rural community, these all terms are very important. अब इसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ नादी कितने की क्या डायमेंशन होता है, नादी का कौन से शहर में पाई जाती है, किस महीने नादी का इंपॉर्टेंस है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से स्टेट्स में, जैसे आपने सुना होगा टंका जो है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। हुंड जो है, ये आपको उड़ीसा में दिखाई देगा। नॉर्थ ईस्टर्न के वाटर कंजर्वेशन जो एरिया, जो मेथड्स हैं, वो बहुत यूनिक हैं। ये इन्वायरमेंटल बैलेंस की अगर आप बात करो, तो इन्वायरमेंटल बैलेंस में देखिए, आपको मेल ब्लैक बक्स और वाइल्ड बोआर्स को नादी के पास फुटप्रिंट पाया गया। इसका मतलब सिर्फ पानी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, स्पीशीज का कंजर्वेशन भी हो रहा है। इससे रिलेटेड मैं आपको 4-5 एक्ट्स के बारे में बता देता हूँ, जो बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। देखिए, सबसे पहला पुराना एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इंडिया का जो है, सबसे पहला है, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। ठीक। सेकंड के बाद, इसके बाद जो हमारा कोई एक्ट आया था, तो वो हमारा वाटर कंजर्वेशन एक्ट आया था। वाटर, जिसको हम वाटर एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये वाटर एक्ट आया था हमारा 1980 सॉरी 1974 में। इसके बाद हमारा फॉरेस्ट फॉरेस्ट का कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 का। देन वी हैव एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर एक्ट, जो कि हमारा आया 1981 में। एयर एक्ट आया हमारा 1981 में, फॉलोड बाय फॉरेस्ट कंजर्वेशन ट्राइबल राइट्स एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये कुछ टॉप 5 लेजिस्लेशंस हैं। इसमें वाटर एक्ट और एयर एक्ट जो है, वाटर एक्ट और एयर एक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यानी सेंट्रल बॉडी फॉर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वो इन दोनों एक्ट्स के अंडर बनाई गई है। वहीं पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दिखाई देगी। वेयर एज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारी अलग बॉडीज हो सकती हैं। जैसे कि एक आंसर है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये 2022 के यूपीएससी में शायद क्वेश्चन भी आया है कि ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है, ये किस एक्ट के अंडर बनाई जाती है। तो ये एक्ट्स और इनसे, इनके द्वारा फॉर्म की गई बॉडीज जो हैं, वो हम तुरंत निकालेंगे यहाँ से, जैसे ही हम बात करेंगे लोकल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की। तो इस फैक्ट्स को ध्यान में इन फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा, और इतना ही हमें करंट अफेयर्स में पढ़ना है।
देखिए संडे का पेपर होता तो वैसे बहुत इलाबोरेट है, बट हमें सब चीज़ें उसमें नहीं पढ़नी रहती है। इंटरनेशनल इश्यूज जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, यूपीएससी का पार्ट नहीं है अंटिल द टाइम कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व। और अगर एक आध क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या होता है, वो हमारी खराब किस्मत है। बट हम उन एक आध क्वेश्चन के लिए आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, एक आध क्वेश्चन के लिए 2 नंबर के लिए हम अपनी जी जान नहीं लगा देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा 50 क्वेश्चन सही हो और हम कट ऑफ पार करें। तो 50 क्वेश्चन हम स्टैटिक और करंट को जोड़ते हुए पढ़ रहे हैं तो हमारा समय बचता है। ये स्ट्रैटेजी की बात है दोस्तों। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इतना एक्सटेंसिव है सिलेबस, तो डेफिनेटली आपको सब कुछ पता नहीं हो सकता है। आपको कहीं पे ट्रेड ऑफ करना पड़ता है और ऐसे में आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन ज़रूर कैच करें जो कि पूछ जाएगा। क्योंकि ये यूपीएससी का चैनल है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का हमारा मेन फोकस रहता है, हमारे सारे कोर्सेज सिविल सर्विसेज के लिए है, हमारी एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है पर्टिकुलरली। तो इसलिए हमारे द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में मैं आपको ये सारी चीज़ें भी साथ-साथ बता रहा हूँ। अब जैसे स्ट्रेंथनिंग जेनोमिक सर्विलेंस ज़रूरी क्यों है? तो ज़रूरी क्यों है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जेनोमिक सर्विलेंस होता क्या है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जेनोमिक सर्विलेंस वो होता है जिसमें हम वायरस के कुछ एक पर्टिकुलर डीएनए को निकाल के अपने पास रख लेते हैं और उसकी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि जितने तरह के वायरस के स्ट्रेन्स चेंज होते रहेंगे, आप ये समझोगे कि वायरस अपना रूप चेंज कर रहा है और ऐसे में वायरस को स्टडी करके एंटी वायरल जो बनाने रहते हैं उसमें मदद मिलती है। तो अभी मंकी पॉक्स वायरस का जो वेरिएंट है, कोविड का जो वेरिएंट है, सार्स का जो वेरिएंट है, मर्स का जो वेरिएंट है, ये सारी चीज़ें इंडिया में बड़ी प्रॉब्लमैटिक है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इनसे जूझ रहा है। तो आप इसको उस लाइट में पढ़ने की कोशिश करिएगा। और एक रॉक अगामा गिव्स इनसाइट इनटू अर्बनाइजेशन कंजर्वेशन। अगेन आई वुड से दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज not really that important, right? Again, creatures that crossed an ocean to find India. Here you will find how the continental drift theory is associated with Darwin's theory of evolution, and how why Western Ghats is considered as still the biological hotspot in the world. So there you will find information in this particular regard. So you will can try it, and please do not try to make extensive notes out of it. You just have to go through it. And this is again time ताई ये वाली जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस चीज को आप पढ़िएगा। हाउ विल द 5G ऑक्शन इम्पैक्ट द सेक्टर। ये कम्युनिकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही करंट अफेयर्स में आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम अपनी फटाफट पीपीटी पे आते हैं, आपको बेसिक बातें हम ब्रीफ में बताते हैं ताकि आपको क्या हो, नोट मेकिंग में मदद मिले। तो हमने अभी देखा जगदीप धनकर वाले करंट अफेयर्स देखा, तो अभी हम वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बात करते हैं। इसमें जगदीप धानकर जी जब वाइस प्रेसिडेंट की तरह चुने गए हैं, तो आपको जो जो फैक्ट आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि भैया वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता कौन है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ही कराता है। अब वाइस प्रेसिडेंट का वोटिंग कैसा होता है, इनडायरेक्ट तरीका होता है। तो आपको पता है इसका वाइस प्रेसिडेंट में भी जो सिस्टम है उसको कहते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सिस्टम है, ये मैकेनिज्म है। वाइस प्रेसिडेंट में के चुनाव में वोट कौन करता है, तो उसको जो वोट करता है उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल कॉलेज। अब उसमें देखिए कौन कौन होता है इलेक्टोरल कॉलेज में। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि ऑल मेंबर्स जो है किसके किसके, राज्यसभा के और लोकसभा के इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं पे अगर डिफरेंस की बात करें प्रेसिडेंट के चुनाव से, तो प्रेसिडेंट में आपको पता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हिस्सेदारी लेती हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आल्सो टेक पार्टिसिपेशन, वेरा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स देखिएगा आप पार्टिसिपेट नहीं करती हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। इसके आगे बढ़े, आर्टिकल 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि अगर वैकेंसी हो जाए एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस से ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट या किसी और कारण की वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्सपायरेशन के पहले इलेक्ट किया जाना चाहिए। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस एक्सपायर होने वाला है, डेट खत्म होने वाली है, उसकी टेन्योर खत्म होने वाला है, उसके पहले वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मान लो अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, तो वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर देगा तो टाइम पीरियड है कि विद इन 6 मंथ्स हमें नया चुनाव कराना ही कराना है।
आर्टिकल 324 जो है आपको पता है, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, और प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एक्ट है 1952 का, और उससे रिलेटेड रूल्स हैं 1974 के, जिसके तहत ये पूरा सुपरिंटेंडेंस हमने किसको दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें ये है कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है अगर मान लो प्रेसिडेंट का ऑफिस रेजिग्नेशन से, टर्मिनेशन से या इम्पीचमेंट से खत्म कर दिया जाए, ठीक है, या डेथ की वजह से खत्म हो जाए, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट कैन रिमेन एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. विद इन 6 months यू हैव टू कंडक्ट अ फ्रेश इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर। इंडिया ने अपनी एम्बेसी जो है वो अफगानिस्तान में ओपन करी है। रिसेंट विजिट हमारी जो है जो राजनाथ सिंह की थी जून में अफगानिस्तान में, वहाँ पे तालिबान के साथ हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमारा इनिशिएटिव अफगानिस्तान के साथ इंगेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाइना जो है वो पिक्चर में आ रहा है बार बार। चाइना अफगानिस्तान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अभी 2-3 दिन पहले की खबर थी कि चाइना चाह रहा है कि अफगानिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन जाए। वेयर एज इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया ने बोला है अफगानिस्तान को कि हम आईएनएसटीसी का पार्ट बनाएंगे और आईएनएसटीसी कॉरिडोर से अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट के माध्यम से जोड़ेंगे। तो ये जो चीज़ है आईएनएसटीसी और चाबहार, ये इंडिया कह रहा है, ऑल्टरनेटिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना कह रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अफगानिस्तान को ज़्यादा दिन तक बॉयकॉट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा डिप्लोमेटिक प्रेजेंस होना ज़रूरी है। इसमें हमारा एम्बेसी, कॉन्सुलर ऑफिसर्स जिसको हम कॉन्सुलेट्स कहते हैं, और हाई कमीशंस, इनके डिग्स में डिफरेंस समझिए। एम्बेसी मेन होता है, यानी कि ऐसी कंट्रीज जिसमें ब्रिटिशर्स का रूल नहीं रहा हो, उनके साथ हम डिप्लोमेटिकली टाई अप करते हैं, जैसे इसराइल, तो हमारी एम्बेसी होगी वहां पे। कॉन्सुलर ऑफिसर्स क्या होते हैं, कॉन्सुलर ऑफिसर्स इज जस्ट लाइक वन ऑफिस, एक डिपार्टमेंट खोला है हमने किसी दूसरे शहर में जो कि एम्बेसी के अंडर काम करता है। अब इंडियंस हैं, दूसरे देश में रहते हैं, तो उनको क्या है, लेट से कुछ ग्रीवांस है, या इंडियन वर्कर्स हैं दूसरे सिटी में कंट्री में रहते हैं, तो आप बार बार कैपिटल की तरफ नहीं जा सकते, तो आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑफिस बना देते हैं जिनको हम कॉन्सुलर ऑफिसर्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम हाई कमीशन की बात करें, तो हाई कमीशन सिर्फ और सिर्फ कॉमनवेल्थ नेशंस, यानी कि जो 56 देश हैं जहाँ पे अंग्रेजों का ब्रिटिशर्स का रूल रह चुका है, वहाँ पे हमारे हाई कमिश्नर्स होते हैं, ना कि हमारे डिप्लोमैट्स, या हम कह दें एम्बेसडर्स। वी वोंट हैव एम्बेसडर्स, राइट, वी विल हैव हाई कमिश्नर्स। ये क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने बताया था, पूछा गया था। तो जब काबुल में 15 अगस्त को हमने डिप्लोमेटिक मिशंस बंद किए थे, तो उस साल जो 2020 और 2021 के बच्चे, तो 2020 के बच्चों से मैंने सुना है, स्टूडेंट से, एस्पायरेंट से, क्वालिफाइड एस्पायरेंट से, जिन्होंने बोला कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये युवांग 5 का जो मूवमेंट है, ये इंडिया के लिए कंसर्न रेज करता है। ये आप थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसको समझिएगा। ये युवांग 5 जो शिप है ना चाइना का, इंडिया क्यों इतना परेशान है, क्योंकि ये श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट पे आ चुका है। अब हम्बन टोटा पोर्ट पे आने का मतलब क्या है, देखिए, इस शिप की कैपेबिलिटी है क्या, कि ये 725 किलोमीटर का हाइट है, और 1000 किलोमीटर का रेडियस, इतने का ये क्या कर सकता है, किसी भी सैटेलाइट, वेपन, मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि ये जो इसका सिलेंडर रीच है, ये बहुत बड़ा है, इसका, इस युआंग 5 शिप का। अब अगर उसने ये शिप को इस जगह प्लेस कर दिया है, तो इसके 1000 किलोमीटर के रेडियस में ये ऐसा क्षेत्र आता है। अब इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न क्यों है, और क्यों हम्बन टोटा में उसको प्लेस किया गया। देखिए, हमारा विशाखापट्टनम, वाइजैक, जो हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड है वो यहाँ पे लोकेटेड है। जो हमारा सदर्न नेवल कमांड है कोची, वो हमारा इस जगह पे लोकेटेड है। जो हमारा वेस्टर्न नेवल कमांड है मुंबई, वो हमारा यहाँ पे लोकेटेड है। यानी कि उसके रेडियस के विद इन हमारे सारे नेवल जो वी कैन से कमांड ऑफिसर्स है, जहाँ से हम इंडियन ओशन की सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, हम इनके रडार के अंदर आ चुके हैं। इसीलिए इंडिया ने बोला था श्रीलंका को, भाई मना करो हम्बनटोटा पोर्ट में आने के लिए। अभी श्रीलंका ने अफसोस जताया है, पर शिप ऑलरेडी आ चुका है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में इंडिया को मेंबरशिप मिली है। ये अराउंड अराउंड 35 देशों का समूह है जो कहते हैं कि हमने कमिटमेंट खुद से दी है नॉन प्रोलिफरेशन करने की।
मिसाइल कैपेबिलिटी की, केमिकल बायोलॉजिकल वेपन की और न्यूक्लियर वेपन्स की। इसकी शुरुआत 1987 में G7 कंट्रीज ने कहा। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम इसमें रोक लगाता है क्या कि आपकी मिसाइल की मारक क्षमता 800 से 1000 किलोमीटर ज़्यादा नहीं हो सकती। अब क्योंकि इंडिया ने साइन कर दिया है, तो इसका मतलब कि ये वाले जो नेवल डॉकयार्ड्स हैं, ये आपके लिए मुश्किल है कि आप यहाँ से चाइना पे अटैक वटैक कर पाओ। तो ऐसे में इंडिया ने अपना कंसर्न जो है वो रेस किया है। अगला जो GS3 से कैप्चरिंग टाइगर्स इन द वाइल्ड वाला है, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी थी 1973 में। कब? 1973 में। और प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ इंडिया ने एक चीज़ और करी थी, एक ऐप बनाया था जिसका नाम है एम स्ट्राइप्स। ये कैमरा जो फोटोग्राफ्स है टाइगर की, वो इसको प्रोसेस करता है और टाइगर के जो ये स्ट्राइप पैटर्न्स होते हैं उसकी बॉडी पे, जो स्ट्राइप पैटर्न्स होते हैं हर टाइगर के अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इंसानों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, वैसे टाइगर के स्ट्राइप पैटर्न्स अलग होते हैं। तो एम स्ट्राइप्स उनको डिटेक्ट करता है। ये सब 1973 से स्टार्ट है। इंटरनेशनल डिक्लेरेशन जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है टाइगर कंजर्वेशन का, सन 2010 का, जिसमें कि 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने सेंट पीटर्सबर्ग में कमिटमेंट किया था कि टाइगर की पॉपुलेशन को हम बचाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप टाइगर रेंज कंट्रीज को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया आर लार्जली द पार्ट ऑफ इट, राइट। तो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 1973 की, जिसमें हम टाइगर स्टेट्स को टाइगर कंजर्वेशन इन डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व में करने की कोशिश करेंगे। इंडिया में आपको पता है अराउंड अराउंड 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। इनकी लोकेशंस और इनके मैप वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो ये एक तरह की स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, जिसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। और तब से ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर से बनाई गई है, जिसमें टाइगर कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करना है। डिफेंस पॉलिसी और प्रोक्योरमेंट, ये हमारा करंट अफेयर्स था। इसमें ऑफसेट पॉलिसी जो है 2005 की है। ये ऑफसेट पॉलिसी में वाइब्रेंट एरोस्पेस क्लस्टर, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस अक्रॉस बेंगलुरु को प्रमोट करना था। ऑफसेट का मैंने आपको मतलब समझाया था एनालिसिस करते समय कि ऑफसेट का मतलब है कि टेक्नोलॉजी हम अपने पास मंगाएंगे और जो मनी है दूसरी कंट्री को जो गया है उसका यूटिलाइजेशन हमारे डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, डिफेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऑफसेट क्लॉज में आती हैं। और उसके बाद राजस्थान के नादीज वाला कंजर्वेशन है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है स्टेट्स के साथ मिलके पानी की क्वालिटी ऑफ रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज को असेस कर रहा है अंडर नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसी में रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स भी है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी रिलेटेड है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके बाद आपको जो चीज़ याद रखनी है वो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसको हम नमामि गंगे प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम कब का? 2015 का। इसमें दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। और सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें रीडेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट है वाटर का, वाटर के अराउंड, पनेदी के अराउंड जो भी चीज़ें एसेट्स अवेलेबल हैं। तो ये था हमारा द हिंदू का करंट अफेयर्स एनालिसिस। एक बार लास्ट में सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आप पढ़ लीजिएगा। एम्बेसी और कॉन्सुलर ऑफिसर्स और हाई कमीशन के बीच का डिफरेंस हमने डिस्कस किया। युआंग 5 के अंडर हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम को डिस्कस किया। कैप्चरिंग टाइगर्स इन द वाइल्ड में हमने एनटीसीए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में डिस्कस किया, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के बारे में डिस्कस किया। डिफेंस पॉलिसी ऑफ प्रोक्योरमेंट 2005 की बात करें तो हमने इसमें ऑफसेट क्लॉज क्या होता है उसको समझने की कोशिश करी और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बात किया। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस टुडे। I'll see you guys in the next session very soon. Till then, take care. All the very best.